Good afternoon to all of you. Let's come to 100 pages notebook. Question number 7. जल्दी से आ जाइए. I know now your SY/FY exams are also going on. You have to manage this time. तो आप लोग properly ये timing को manage कर लीजिए. And from Monday, now my schedule is getting just changed from Monday. So tomorrow I'm going to take your session from 1 o'clock. और आज का सेशन जो है वो मुझे जल्दी से इधर से वापस मैं आपको बताया कि पुणे ब्रांच को जाना पड़ता है. सो अब भी मैं थोड़ा फास्ट ले लूंगा आज का सेशन. एंड टुमारो सेशन वी विल टेक इट फॉर 2.5 hours. चलिए, सो ट्राई टू अटेंड इट इन लाइव सेशन, क्योंकि मैं इसके रिकॉर्डेड सेशंस भेजने वाला नहीं हूँ. इट इज़ नॉट अलाउड एज पर पुणे ब्रांच पॉलिसी. तो आफ्टरवर्ड्स तो मैं पूरा स्कैनर में जो सॉल्व करवा के ले रहा हूँ डेली, आई विल गिव यू सम टारगेट्स. तो आप 100% अटेंड करने की कोशिश कीजिए. इट्स ओनली फॉर योर बेनिफिट. इसमें से मुझे कोई फायदा होने वाला नहीं है. तो स्टेट द सर्कमस्टेंसेस इन विच वेज रेट time rate system of wage payment can be preferred. Okay, now today we are going to see some concepts related to wages. तो आज हम लोग क्या सोचने वाले हैं, wages के बारे में हम लोग बात करेंगे. Now see, if you are employee and I am employer, so to motivate you I will decide some incentive plans. तो मुझे आपका इंसेंटिव्स प्लान्स एंड वाइल डिसाइडिंग यूर वेजेस, मुझे ऐसा कुछ आपके बारे में सोचना पड़ेगा कि दैट यू विल रिटेन इन माय कंपनी. सो ये हमें देखना पड़ेगा. प्लीज ट्राई टू म्यूट यूर सेल्फ. आज जूम पे सेशन है तो म्यूट करने की कोशिश कीजिए. तो फर्स्ट थिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट that how I am going to draw these wages, okay, or how I will calculate these wages. तो मेरे पास बहुत सारे plans रहेंगे. Either I will motivate you on time basis or I will motivate you on number of hours you work, that is a time wages, or number of units that you produce. And suppose if you are producing within time or you save my time, so I don't have to pay you for that time. So I will share some incentives with you, so which is called as bonus plan. So we will divide it. We will divide it in 3 parts: time wages, piece wages, and bonus plans. Okay, so write down time wages, piece wages, number of units produced. So time wages means what? Number of hours worked. Think logically. Otherwise, number of units produced, and based on time saved. तो जो टाइम सेव्ड किया उसके ऊपर बेस्ड. हाँ, पॉइंट्स काढून ठेव. 100 pages book. 100 pages book already prepared है. ठीक है. So time wages, piece wages, bonus wages. So accordingly you will produce, you will calculate bonus. तो एक बार हम लोग इसको अच्छे से समझ लेते हैं. डिफरेंट स्कीम्स. 100 pages नोटबुक ओनली. आइडल टाइम हो गया था. Objectives are also over. Normal idle time, abnormal idle time over. So now, where time based is suitable. So time based is suitable when payment is made on number of hours worked. So where services cannot be directly or tangibly measured. So जहाँ पे ऐसा नहीं कि आउटपुट से रिलेटेड है, सिर्फ मेरा बंदा वहाँ पे बैठा हुआ चाहिए. Now suppose if I want one person who is continuously will be there for supervision, so but obvious or general helper,
So clerical staff. So he won't be on units produced basis. He will be on services for which directly I won't get any output. Okay. So ऐसे सर्विस में या ही इज एंगेज इन हाईली स्किल्ड जॉब्स. फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं काम कर रहा हूं तो भाई मेरा टाइम ऐसा नहीं होगा कि संकेत सर दिन भर में 10 घंटे काम करेंगे तो उनको प्रोफेशनल फीस मिलेगी. सो आफ्टर बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसा नहीं होगा कि आपने ये क्लाइंट की फाइल 1 आवर में किया तो आपको पेमेंट मिलेगा. नहीं. सो प्रोफेशनली एंगेज पीपल बेटा, हाईली पेड पीपल, and where pace of output is independent of the operator. Okay. So ऐसा कुछ जरूरत नहीं कि आउटपुट और ऑपरेटर इनका कोई रिलेशन नहीं है. इन दैट केस बेटा इट विल बी टाइम बेस्ड. सो ये एग्जाम क्वेश्चन है. So write down this answer and write down over in comment section. So time based system were suitable for time based system. This is question number 7 also, theory question. नवंबर 2001 में आया था. नवंबर 2001 में. तो वेयर सर्विसेज कैनॉट बी डायरेक्टली और टेंजिबली मेजर्ड, engage in highly skilled jobs, and last one where pace of output is independent of the operator. जैसे आकांक्षा जी आपकी एग्जाम कब से बेटा? At least 2-3 students write down over. So I will move to next point. Okay. चलिए. Now next is so formula for this is very simple. Whatever time taken multiplied by rate per hour. Whatever time taken into rate per hour. Over. Next, टाइम बेस्ड सिस्टम के बाद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. यू कैन जस्ट सिंपली अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. टाइम सिस्टम इज सिंपल टू अंडरस्टैंड. रिड्यूस टेम्पटेशन ऑफ वर्कर्स टू इंक्रीज आउटपुट बाय लोअरिंग क्वालिटी. सो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, बट यूनिटी इन एम्प्लॉई. सो देयर इनएफिशिएंसी एफिशिएंसी ये नहीं काउंट होगा. एंड स्टेबिलिटी इन वेजेस. डिसएडवांटेजेस, नो मॉनिटरी इंटेंटिव टू रेज द प्रोडक्शन. तो जो एम्प्लॉय अच्छा है वो कुछ भी नहीं करेगा. नो डिस्टिंक्शन बिटवीन स्लो एंड एफिशिएंट वर्कर्स. फॉल इन आउटपुट रेजेस कॉस्ट पर यूनिट एंड एम्प्लॉय कॉस्ट पर यूनिट नॉट श्योर मे सफर लॉस ऑन कोटेशन इफ ऑलरेडी सबमिटेड. तो ये याद रखो, कोई एम्प्लॉय कभी अच्छा काम करने की कोशिश ही नहीं करेगा. सो राइट डाउन जल्दी जल्दी. तो ये क्वेश्चन आ सकता है. टाइम बेस्ड में प्रॉब्लम क्या है? एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. ओनली important words, advantages and disadvantage. Write down jaldi jaldi. 100 pages notebook only. Advantages and disadvantage. Yes, Shruti. श्रुति सरोज जी.
बेटा कुछ समझ में आ रहा है क्या आपको? आप मेंटेन कर रहे हो ना 100 पेजेस और 400 पेजेस? जल्दी से लिखिए। ओवर बेटा। चलो आकांक्षा ओवर बेटा। आकांक्षा थ्योरी कितने पेजेस में हुआ आपका? एम्प्लॉय कॉस्ट कौन सा पेज चल रहा है? ओके वेरी गुड। हो गया क्या आकांक्षा? चलो नेक्स्ट। आउटपुट बेस्ड। आउटपुट बेस्ड वेज पेमेंट इज डिपेंडिंग ऑन आउटपुट। सो ये बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू रेट पर यूनिट। अभी मेन जो एग्जाम क्वेश्चन है वो देखते हैं। अभी एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस आएंगे, लेट्स चेक इट। कि हलसे प्लान नाउ बेटा, हलसे ही हैज प्लान्ड आउट दिस एक्टिविटी। तो हलसे प्लान, यस एनीवन हु विल टेल मी द फॉर्मूला ऑफ हलसे? चलो इतना तो सबको आना चाहिए। हलसे प्लान इन रिवीजन बैच, यस एनीवन? हाँ बोलो बेटा। Okay, very good. So, whatever time he will save, suppose if I ask you to do the work in 5 hours, but you completed it in 3 hours. So, you saved my time 2 hours. So, 2 hours का wages आपने save किया. So, मैंने खुशी खुशी मैंने I will pay you happily 50% to you, and ultimately my benefit will be 50%. So, for 5 hours, so simple thing, yes, if I am paying 100 rupees per hour, so 100 rupees per hour. So my payment, suppose if you don't take beta, if you don't save any time, I have to pay you 500 rupees, but you have completed this work is in 3 hours. So 3 hours may if you completed, so I have to pay you only 300 rupees. So ultimately you saved my 200 rupees, and if you saved my 200 rupees, 50% you will take and 50% I will take. So employee को 100 मिलेगा, मुझे 100 मिलेगा. So ultimately effective rate will be 400 rupees I will pay to you. 400 means 300 plus 100 I will pay. Ultimately my effective rate वैसे देखना गया तो 100 rupees है, but here 400 upon 3 my effective rate will be, which is called as बेटा कितना आएगा?
मेरा कैलसी वर्क नहीं कर रहा है. ओके, सो 400 divided by 3, my effective wage rate, it is called as effective wage rate, total wages under Halse plan 300 plus 100. So how you get the formula? Time taken into rate per hour, time taken into rate per hour plus 50% into time saved into rate per hour. Let's check it. आपको वही आंसर मिल रहा है क्या? 3 into 100 plus you saved beta 2 hours and what is rate per hour? 100. So whatever amount you saved, उसका 2 into 100, 200 plus 50% and here 300. So you are getting 400. How to calculate effective wage rate? Effective wage rate is equal to total wages under जो भी plan होगा divided by time taken, total time taken. So 400 upon 3. So I am paying you 133.33 is the effective wage rate. You got this concept? Yes, सबको समझ में आया होगा ऐसा एज्यूम करता हूँ. अद्विका समझ में आया बेटा आपको ये? हाँ चलो, सो राइट डाउन हल्से प्लान. हल्से प्लान उसके अंदर फॉर्मूला लिखो फटाफट, एक सेकंड. Okay, write down the formula and what write down advantages and disadvantages. Guaranteed time rate and opportunity to increase earnings. No strong incentive like piece workers. Chalo, write down the formula. Time taken into time rate. So rate per hour RH plus 50% into time saved into RH. चलो फास्ट. Better write down this example. Advantages, disadvantage might be asked in exam, 2 mark के लिए. So don't skip this in option. Only 3-4 pages के line से आपके. Yes, over बेटा श्रिया. Write down this example. तो कैसे लिखेगी? टाइम अलाउड कितना था श्रेया? 5 hours. टाइम टेकन तो रेट पर आवर 100 रुपीज. चलो and write down red pen से effective rate per hour is equal to total wages upon time taken. Effective wages is equal to total wages upon time taken.
ओवर इफेक्टिव वेजेस का भी फॉर्मूला लिखो, टोटल वेजेस अपॉन टाइम टेकन हो गया क्या श्रिया? नेक्स्ट वन, रोवन प्लान। ओके, अच्छा सेकंड एडवांटेज रह गया, सिस्टम इज इक्विटेबल, शेयरिंग प्रिंसिपल नॉट लाइक बाय एम्प्लॉइज, ये एक रह गया था। सो इफ पॉसिबल प्लीज अपडेट दिस, सिस्टम इज इक्विटेबल एंड डिसएडवांटेज में शेयरिंग प्रिंसिपल नॉट लाइक बाय एम्प्लॉइज। System is equitable and sharing principle is not like by employees. रोवन प्लान में लिखो फॉर्मूला, what is the formula in रोवन प्लान, write down. Next plan is रोवन प्लान. Yes Shreya, what is the formula? So time taken into rate per hour plus time taken upon time allowed into time saved into rate per hour. It's a रोवन प्लान. इधर एक डायग्राम बना के रखेंगे, रोवन is equal to Halsey. Yes beta, when it is possible, if time taken upon time allowed is always equal to 50%, लेस देन 50% यदि आंसर होगा तो बेटा हालसे बेटर, एंड इफ टाइम टेकन इज ग्रेटर देन टाइम अलाउड तो रोवन इज बेटर. इसमें क्वालिटी गुड और यहां पे क्वालिटी इज नॉट गुड, इज बैड. लोग फिर जल्दी जल्दी काम करेंगे हलसे प्लान में. सो क्वालिटी इज गुड if your time taken is upon time allowed is greater than 50%. So when you want quality product, so always go with रोवन plan. रोवन plan always better. Over Shreya. कुछ याद आ रहा है क्या आपको? अभी पूरा याद आ गया? चलो एडवांटेजेस राइट डाउन. एडवांटेजेस, फुल प्रूफ सिस्टम, ओवर या ओवर.
ओवर, चलो. And third advantage and disadvantage, sharing principle. एम्प्लॉयर के लिए अच्छा है, बट एम्प्लॉय शेयरिंग उनकी उतनी लेवल नहीं रहती, वो समझ पाते शेयरिंग में. नाउ वन ऑफ माय स्टूडेंट, सो शी जॉइंड वन CA ऑफिस. आई टोल्ड हर कि भाई तू शेयरिंग बेसिस पे जा विथ हिम, ही इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड. बट एम्प्लॉय का एक तरीका होता है कि नहीं, आई शुड गेट दिस अमाउंट, ओके, तो मिनिमम दिस अमाउंट 50,000 60,000 आई शुड गेट. तो उसको जो शेयरिंग पे किया था, सो शी रिजेक्टेड दैट स्कीम. एंड इन द सेम ऑफिस माई वाइफ इज ऑल्सो वर्किंग. सो मैंने उसको बोला, मेरे वाइफ को, कि तू शेयरिंग पे ही लेना, डोंट गो विथ रेम्यूनरेशन, फिक्स रेम्यूनरेशन बेसिस. और आज 3 साल बाद दोनों को समझ में आ रहा है कि शेयरिंग इज मोर इजी एज कंपेयर टू फिक्स अमाउंट. तो शेयरिंग हमेशा अच्छा होता है इफ यू आर एम्प्लॉय, ओके. बट लोग क्या सोचते हैं, इन ओनली इन फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर में वो सोचते तो बट ऑब्वियस फिक्स पेमेंट इज ऑलवेज यू लाइक कि रेम्यूनरेटिव है. बट आफ्टर सम ईयर्स शेयरिंग इज ऑलवेज बेटर बिकॉज यू विल शो यूर क्वालिटी, एंड क्वालिटी जैसे इंक्रीज होगा, आपका काम जैसे जैसे अच्छा होता जाएगा, इफ योर नंबर ऑफ क्लाइंट्स आर इंक्रीजिंग, इन दैट केस नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैंडल्ड बाय यू विल गेट मोर रेम्यूनरेशन. स्टार्टिंग ईयर में तो बट ऑब्वियस फिक्स ही अच्छा लगता है, बट आफ्टर सर्टन ईयर्स शेयरिंग इज ऑलवेज बेटर. ओके, समझा श्रेया जी आपको? तो आप कौन सा पेमेंट लोगे, शेयरिंग वाला या फिक्स वाला? ओके ओके, ठीक है, देखेंगे, पहले CA हो जाने दे तू. ओके, सो हियर वी हैव फिनिश्ड विथ इंसेंटिव सिस्टम्स. इट इज डिवाइडेड इन 3 प्लान्स. वन इज टाइम, वन इज पीस, एंड लास्ट वन इज बोनस. तो ये वीडियो मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ. सो इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सी सम क्वेश्चन आंसर. सो दिस इज प्योरली थ्योरी वीडियो, जिसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया टाइम प्लान कब सूटेबल होगा, पीस वेजेस, एंड लास्ट में बोनस वेजेस, बोनस प्लान्स. थैंक यू.